Hello and welcome back, my dear students. We are learning political science and the name of the chapter, that is outcomes of democracy. In the earlier video lecture, we got information about economic outcomes of democracy, and among that we learn about economic growth and economic development. And we compared that democracy with dictatorship, that how the economic growth in dictatorial country is faster or more than a democratic country. But that difference is not so much difference. That is sometimes negligible difference, and democratic government is more convenient for the welfare of the society. This was the conclusion of yesterday's topic. Now let us move toward the next topic, which will under this economic outcome, that is reduction of inequality and poverty. Any democratic country, whether it is working properly or not, that democratic government is favorable for the society or not. To see this, it is most important to check that whether that government is trying to eliminate the poverty of that country or trying to reduce inequalities of that country. Now, we all know that any democratic country has the first goal in front of them, and that is reduction of poverty. Poverty, this concept is related with the economy of the person. If the person is being unable to purchase those things which are essential for his survival, there are different definitions of the poverty. But we will understand what is exactly poverty stand for. पोवर्टी को अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. जैसे कि एक पोवर्टी के बारे में हम ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए दो वक्त का खाना परचेस नहीं कर पाता, उसको हम गरीब कह सकते हैं. या फिर अगर हम उसके कैलोरीज को देख के बोले कि एक व्यक्ति है, वो विलेज में रहता है और उसको डे में सर्वाइवल के लिए 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, और वही अर्बन एरिया में रहता है तो उसको थोड़ा कम कैलोरी एक्सपेक्ट किया जाता है इन कंपेयरिंग टू द विलेज पर्सन्स, जस्ट लाइक 2100 कैलोरीज. तो जो लोग इतनी कैलोरीज की फूड को भी परचेस नहीं कर पाते या फिर ले नहीं पाते, ऐसे लोगों को हम पुअर कहते हैं. कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसका पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है कि अपने देश के गरीबों की संख्या को कम करो. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आवर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्लानिंग फॉर दिस to reduction of poverty, just like in Indira Gandhi's period. You have heard that she given the slogan, what was that? Remove poverty, garibi hata, isn't that? So these are the slogans, means they are planning for removal of the poverty. But still also our country have not reduced completely poverty. Why? Because poverty is a big challenge in front of any democratic country. So here what we have to understand, we are learning outcomes of democracy, and this is the economic outcome. It means that any democratic country, there is their first and most target, that is to reduce poverty. If government is working to reduce poverty, it means that is the favorable government for the society. That government is accountable to the society. Government's duty to reduce poverty and eliminate economic disparities. Economic disparities means the difference between rich and poor. The existence of poor and rich persons in our country shows that there is the economic inequality among the citizens. If the number of poor is increasing and number of rich will be remain constant, it means that what the country is not developing properly. कोई भी देश है, उसका विकास करना है तो गरीबों की संख्या कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम मान सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है.
उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहिए। इट मीन्स उनका HDI इंक्रीज होना चाहिए। एटलीस्ट उनको 2 वक्त का खाना परचेस करने के लिए पैसा मिले, इतना एम्प्लॉयमेंट भी उनको अगर दिया जा रहा है तो शायद वो लोग डेमोक्रेसी में गरीबी के ऊपर आ जाए। इज इट दैट? सो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ये पहला पॉइंट बनेगा कि कोई भी डेमोक्रेसी है उसका पहला अपेक्षा होती है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए। रिच एंड पुअर ये वैली जो है वो कम होनी चाहिए। अगर आपने बुक में एक पिक्चर देखा होगा, उसमें एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें उसका जो अपर फेस है यहाँ से हेड तक का, दैट इज़ शोइंग मोर स्ट्रांग, उसके आर्म्स भी बहुत स्ट्रांग है। उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, थोड़ा सा नॉट डेवलप है, नॉट प्रॉपरली डेवलप, और उसके पैर से लेके नीचे तक का पार्ट जो है बहुत ही वीक है। तो ये रिच और मिडल और उसके बाद पुअर, ऐसा ये डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटीज़ को दर्शा रहा है हमारे देश की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के। दैट इज शोइंग दैट रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बीइंग पुअर। दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्फ। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए हमें उसका ये इकोनॉमिक आउटकम को देखना चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट का काम होता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टू रिमूव द पुअर्टी एंड एलिमिनेशन और रिडक्शन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। डेमोक्रेसी एंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनकम्स एंड अपॉर्चुनिटी। बट कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार होती है ना, वो लोगों को इस बात की गारंटी नहीं देती कि हम पूरी तरह से गरीबी को हटा देंगे। टू रिमूव पुअर्टी इज़ नॉट ए जोक, और वो एक मामूली बात भी नहीं है। लोगों की गरीबी दूर करना ये एक वन टाइम एडजस्टमेंट या फिर वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ते रहती है। हमने कुछ लोगों को काम दिया, फिर से नए लोग अनएम्प्लॉयड होके सामने आ जाते हैं, उनको भी काम देना ज़रूरी है। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो वो गरीब हो सकता है, जो वल्नरेबल है वो और ज़्यादा गरीब हो सकता है। इसके लिए ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। अब जिस देश में ज़्यादा आबादी होती है, जिस देश की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, ऐसे देशों ने क्या करना चाहिए? ऐसे देशों के सामने ये तो बिग चैलेंज होता है। इवन हमारे देश के सामने भी पुअर्टी एज ए बिग चैलेंज है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पुअर्टी इज़ अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। तो इसको हटाने के लिए, घटाने के लिए कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार कोशिश करती है। और ये सबसे बड़ी क्या होती है, बात होती है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार है वो एटलीस्ट कोशिश तो करती है। अगर आप इसको अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो इतनी भी कोशिश नहीं करती कि जो पुअर्टी है उनकी जो कोई डिमांड है वो सुन ले। कई बार वो उनकी तरफ ब्लाइंड आई कर देते हैं, या फिर निग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर वो अगर अपनी डिमांड को लेकर अड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वो उनके आंदोलनों को रिप्रेस भी कर डालते हैं, दबोच जाते हैं उनके आंदोलन। तो इससे अच्छा है डेमोक्रेसी में एटलीस्ट उनको नोटिस करके उनको रिस्पांस तो दिया जाता है। तो इसमें हम 2 तरीके से इसको जानेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सरकार किस तरह से गरीबी को हटाने के लिए कोशिश करती है। वो गरीबी हटाने के लिए वादा नहीं करेंगे, लेकिन वो एटलीस्ट इस बात की हमें गारंटी या फिर एश्योरेंस देती है कि दैट विल प्रोवाइड गुड्स, इनकम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल, कि जो ज़रूरतमंद है उनको हम कुछ ज़रूरी चीज़ें दे देंगे, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, वो थी MG, है ना, नरेगा। MG नरेगा क्या है? दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गारंटी एक्ट है, सरकार ने पास किया था। उसमें 1 ईयर के पीरियड में एटलीस्ट 100 डेज के लिए अश्योर्ड ये काम देने का गवर्नमेंट का अश्योरेंस था। इफ गवर्नमेंट इज बीइंग अनेबल टू गिव वर्क टू कंसर्न पर्सन, देन दे विल पेड कॉम्पेंसेशन, और उनको डायरेक्टली उसका जो मुआवजा है वो मिल जाता था।
तो ये गारंटी थी इसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इट मीन्स दैट एक डेमोक्रेटिक सरकार है वो गरीबी को हटाने के लिए कोशिश करती है, उसमें गुड्स, अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम प्रोवाइड करने का एक एश्योरेंस होता है। अब देखते हैं हम इसको दो क्राइटेरिया से कैसे जानेंगे कि कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन से देखते हैं, जिसके मतलब इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर फॉर द रिमूवल ऑफ द पुअर्टी और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़, अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। कौन से कॉन्ट्रडिक्शंस है? पहला देखिए इसमें, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बीइंग पुअरर। ये ग्रोइंग इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अमीर अमीर बनते हैं और गरीब गरीब बनते रहते हैं। तो कहा कि डेमोक्रेसी है, ऐसा एक उसके ऊपर आरोप होता है। दूसरा आरोप देखते हैं, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग पुअर्टी। जैसे कि मैंने ये बोला है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या इस एक्ट के द्वारा देश के सभी नागरिकों को, अनएम्प्लॉयड नागरिकों को काम मिल रहा है? नहीं, कुछ गिने चुने लोगों को ही इसका बेनिफिट मिल रहा है। व्हाट इज अबाउट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड? कोई सारे तो डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं, जिनकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन फिर भी लेस पेमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना एक वादे किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ये फुलफिल हो नहीं पा रहा है। ये उसका फेलियर है, ऐसा हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। और एक आरोप है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, दे हैव नॉट्स हैव वेरी लिटिल डिपेंड अपॉन। कि जो हाई रिच लोग होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर लेते हैं समाज के, और जो रिच के अलावा बचे हुए लोग हैं, मतलब पुअर है, वो अपने एक समय के खाने के लिए स्ट्रगल करते हुए हमें इस देश में दिखाई पड़ते हैं। सो दिस इज द इनइक्वालिटी। ये डेमोक्रेसी में जिस वादों को यहाँ पे दिया जा रहा है, किया जा रहा है, उसको फुलफिल करने की और कदम नहीं है। कई सारे लोग तो हंगर की वजह से मर जाते हैं, है ना। मेनी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री डाई ड्यू टू द स्टारवेशन, दैट इज वर्स्ट सिचुएशन। और एग्जाम्पल के रूप में देखो, बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पुअर्टी, गरीबी के अंदर जीवन जी रहे इसमें बांग्लादेश के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, और वो देश एक डेमोक्रेटिक देश। तो देखिए, सो ये सब हम कॉन्ट्रडिक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी ही नहीं है, इससे अच्छा है शायद कोई अदर फॉर्म हम एक्सेप्ट कर लेते। डिक्टेटोरियल कंट्री होता तो एक बार ऑर्डर दे देता और कुछ गरीबों के लिए काम हो जाते और उससे छुटकारा मिल जाता, ऐसा कुछ लोगों का सोचना होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके इन निगलेक्टेबल पॉइंट्स को अगर हम क्या करेंगे, ब्लाइंड आई कर देंगे, तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। इसको देखते हैं हम जस्टिफिकेशन के द्वारा कि इसको किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला, डेमोक्रेसीज लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। कि भाई डेमोक्रेसी तो आपको सिंपली गुड्स और अपॉर्चुनिटीज देने का दावा या फिर वादा कर रहे हैं, इसंट दैट? उन्होंने ये तो नहीं वादा किया कि हम आपकी गरीबी हटा देंगे। मानो गवर्नमेंट ने सब लोगों को पैसे बांट दिए, एक दिन में रातों रात गरीब से अमीर बना दिया, लेकिन क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो अभी नए अमीर बन गए हैं वो फिर एक्टिवली काम करेंगे? लोगों को पैसे बांटने से उनकी गरीबी दूर होती तो शायद आज तक सरकारों ने पैसे बांट के उनको गरीबों से अमीर बना दिया होता, लेकिन ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नहीं। इसमें गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि हम आपको इसेंशियल गुड्स और काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको डेवलप होने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी।
जब लोगों को चीज़ें फ्री में मिलने लगती है तो उनकी क्या बोलते हैं उसको आउटपुट जो होती है ना, काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, वो लेज़ी बनने लगते हैं। और जिस देश की पॉपुलेशन इतनी लेज़ी बनने लगेंगी उससे प्रोडक्टिव वर्क को हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी में गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने का एक एश्योरेंस दिया जाता है सरकारों के द्वारा। इफ डेमोक्रेसी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट पुअर्टी, एट लीस्ट इट ट्राइज टू रिड्यूस पुअर्टी रेशियो विथ वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कि कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार है वो गरीबी को एलिमिनेट करने के लिए असमर्थ होती है, लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश तो करती है गरीबी को हटाने के लिए। इंदिरा गांधी जी के पीरियड में उन्होंने रिमूव पुअर्टी, गरीबी हटाओ के नारे लगाए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अपने पीरियड में अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास, ऐसे क्या दिए जाते हैं, स्लोगन्स दिए जाते हैं। क्योंकि लोगों को साथ में मिलके वो हम काम करेंगे, या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को घटाने के लिए कोशिश करेगी और उसके लिए फिर गवर्नमेंट अपनी नए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वयं रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, कुछ रोड्स बनाने की स्कीम, उसके द्वारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को दिया जाता है। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लेकर डेमोक्रेटिक सरकार काम करती है। और जो सरकार है ना इस तरह से काम करने लगती है तो मेरे ख्याल से वो हम जैसे लोगों के लिए डेमोक्रेसी के अंदर जीने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें इसको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो उसमें लोगों को ये बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता है कि हम गरीब हैं, हमारे लिए कुछ करो। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही बुरी परिस्थिति का एग्जाम्पल है, जिसमें मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, वो अपनी हुकूमत लोगों के ऊपर चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है, तालिबान ने गवर्नमेंट के ऊपर एनेक्स कर लिया और फिर वो अपने मर्जी की सरकार चला रहे, लोगों के ऊपर अपने कानून थोपे जा रहे। डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोगों की कंप्लेंट को सुना जाता है, उसको सॉल्यूशन के रूप में कुछ ना कुछ आउटपुट गवर्नमेंट देती है, वेलफेयर स्कीम लाती है, कुछ प्रोग्राम बनाती है और उसको घटाने की कोशिश करती है। इसमें एक काम हो सकता है कि लोगों को एक्टिवली गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते रहना चाहिए। इफ पीपल आर कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, इट मीन्स दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ अ गवर्नमेंट एंड ऑफ द नेशन। जब लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है तो वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा था कि जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है और वो अपने हक के लिए लड़ते हैं तो गवर्नमेंट को उनकी आवाज़ सुननी पड़ती है। एटलीस्ट इन डेमोक्रेसी तो ज़रूर सुननी पड़ती है। आपने देखा होगा कि फार्मर से रिलेटेड 3 बिल्स पार्लियामेंट में पास हो गए थे। नॉर्थ इंडिया में पंजाब के कुछ फार्मर्स है, कुछ और स्टेट के फार्मर्स है, अपोजिशन पार्टी ने इस बात को लगाए रखा कि जो बिल्स पास किए गए हैं, लॉज बने गए हैं, लोगों के फेवरेबल नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी में उसको अपोज कर करके प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद आकर उन लॉज को कैंसिल कर दिया। दैट इज़ द बिग अचीवमेंट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में गरीब भी हटाने के लिए हमेशा कोशिश होती है और यही तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। इससे और क्या चाहिए हमें, जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट को सुनाए और गवर्नमेंट को उसको फुलफिल करना पड़ेगा इवन आफ्टर वो गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी की सरकार है, उनको लॉ पास करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक मेजॉरिटी की सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी लोगों की बात सुननी पड़ती है। ये बेस्ट और गुड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार जो लोगों की गरीबी को घटाने के लिए और उनके आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करती है ना, ये एक गुड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन दिस पेज वी हैव लर्न अबाउट 3 इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब रहता है सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी।
सो दैट विल वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप आपको इसमें जो भी मैंने बताने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।